Hello children, today in this video we are going to read chapter 6 My Childhood, which is about APJ Abdul Kalam. Let's know about APJ Abdul Kalam. His full name was Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam. He was born on 15 October 1931 and passed away on 27 July 2015. Birthplace Rameshwaram, which is in Tamil Nadu, earlier in Madras. He was an Indian aerospace scientist and politician who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Awards: he received honorary doctorates award from 30 university and institution. He was awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan in 1981 and Padma Vibhushan he got 1990 and the highest civilian award Bharat Ratna in 1997. Let's know about the lesson. Professor APJ Abdul Kalam, who is the former President of India. This chapter, My Childhood, has been taken from his autobiography Wings of Fire. He is one of the world's greatest scientists. In this chapter, he tells us about his childhood days. He talks about his parents, his childhood friends, his experience at school, and he grew up in a traditional society. People of different religions live in that society, but in spite of different religions, people live with peace and harmony. He was always greatly influenced by his father, who taught him honesty and self-discipline. This chapter, My Childhood, इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है और ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका भी नाम है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वो बताते हैं अपने चाइल्डहुड डे के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में और चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में और इनके एक्सपीरियंस जो स्कूल में हुए उन सब के बारे में. और ही ग्रू अप इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, बट इतने सारे डिफरेंट रिलीजन के लोगों के होने के बाद भी वो लोग पीस और हारमनी के साथ रहते हैं. एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर. और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और उन्होंने ही उन्हें ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में सिखाया. आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jalaluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of the spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashima. I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far from more outsiders ate with us than all the members of our family put together. I was born into a middle class Tamil family. So APJ Abdul Kalam was born into a middle class Tamil family. Abdul Kalam का जन्म एक middle class Tamil family में हुआ था and इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. और उनका प्लेस ऑफ बर्थ था रामेश्वरम, जो कि एन आइलैंड है. आइलैंड टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये पहले अभी तमिलनाडु में है. ईस्ट वाइल मीन फॉर्मर, पहले ये मद्रास स्टेट में हुआ करता था. ही सेज दैट हिज फादर जलालुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन. ना ही वो इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास इतनी वेल्थ थी. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इतनी डिसएडवांटेजेस के बाद भी ही possessed ग्रेट innate विजडम. वो बहुत सारी क्वालिटीज़ रखते थे. innate मीन इनबॉर्न क्वालिटीज़. सो ही हैड some other qualities. He was naturally very wise. He was naturally very generous person. He had an ideal helpmate in my mother. And APJ Abdul Kalam's mother's name was Ashima. I don't recall the exact number of people she fed every day. And she used to help my father in every way. वो मेरे father की हर जगह help करती थी. And she was a great supporter and had to him. I don't recall the exact number of people she fed every day.
आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर कि वो इतनी जेनरस, इतने काइंड हार्टेड पर्सन थे मेरी मदर, एवरी डे शी यूज़ टू फीड अ लॉट ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी, एंड शी फेड अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल. I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. Even every day she used to feed lots of people, so she fed a greater number of people. बहुत सारे लोगों को हमारे घर पे आकर वो लोग खाना खाते थे from outside से, बाहर से, than the total number of the members in their family. हमारी फैमिली में जितने मेंबर हैं उनसे ज़्यादा बाहर के लोग हमारे यहाँ आराम से आकर खाना खाते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. Born to tall and handsome parents, we lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. Abdul Kalam is saying that I was one of many children, that he had many siblings. उसके बहुत सारे, वहाँ पर उनके परिवार में बहुत सारे भाई बहन थे. एंड ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ, वो अपने लुक्स के बारे में बताते हैं. अ शॉर्ट बॉय, उनकी हाइट कम थी, ही हैड शॉर्ट हाइट, एंड ही हैज़ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. अनडिस्टिंग्विश्ड आप बोल सकते हैं वेरी ऑर्डिनरी, कॉमन लुक, उनका बहुत कॉमन लुक था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि उनके पेरेंट्स लंबे, टॉल और हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल पेरेंट्स थे. वी लिव्ड इन our ancestral house, which was built in the middle of the 19th centuries. And APJ Abdul Kalam is saying that they are living in ancestral house which was very old. वो पुराने घर में रहते थे जो उनके पूर्वजों का था. It was built in the 19th century, और उसका वो 19th century में बनाया गया था. It was fairly large पक्का house, and पक्का हाउस मीन्स हियर अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट लाइमस्टोन्स उसे कहा गया है. सो मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक एंड द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि मॉस्क्यू स्ट्रीट में था. इट इज़ लोकेटेड इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट विच इज़ इन रामेश्वरम. माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. जो उसके फादर थे, अस्टर मीन हियर सिंपल, स्ट्रिक्ट, सिवरर, वो अवॉइड करते थे सारी इन एसेंशियल, जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, कंफर्ट, उन लग्जरीज़ को वो डिनाई करते थे. अस्टर्स मीन सिंपल, स्ट्रिक्ट, एंड सो हिज फादर वॉज वेरी सिंपल बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, एंड ही वॉन्टेड टू लिव हिज लाइफ इन अ सिंपल मैनर. सो ही यूज़ टू अवॉइड, तो वो सब कुछ डिनाई करते थे, मना करते थे, जो भी इन एसेंशियल कम्फर्ट्स या लग्जरीज़ है उन्हें नहीं चाहिए थी. Even he used to teach his children not to waste money on unnecessary things. However, all the necessities were provided for in terms of food, medicine, clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially and emotionally. So APJ Abdul Kalam is saying that he provided them all the necessary things. वो उन्हें सारी चीज़ें provide करते थे, like food, clothes, medicines. But he used to avoid in essential comforts and luxuries. He wants to live simple life. Even he saying that, in fact I would say mine was a very secure childhood. अब APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि उनका childhood बहुत secure था, because his parents fulfill all his need, whether it was tangible thing, which is a tangible thing, or their love and affection. And this shows that he has a quality of gratitude, कि इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर क्वालिटी है ग्रैटिट्यूड की फॉर देयर पेरेंट्स. इवन APJ अब्दुल कलाम इज थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स वट एवर दे डिड फॉर हिम materially and emotionally. His childhood was secure. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on the Moscow street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. So here APJ Abdul Kalam is saying the Second World War broke out in 1939. So when he was 8 years old. So APJ Abdul Kalam was 8 years old when the Second World War was broken, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 में. सो वी कैन
we can calculate that he was born in the 1931, and for reason I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds. So the demand of tamarind seeds has erupted. Suddenly demand होने लगी tamarind seeds की. Tamarind is a kind of fruit. So APJ Abdul Kalam used to collect the seeds and sell them to a provision shop. And what APJ Abdul Kalam has started, he used to collect all and sell them to a provision shop, which is situated on a Mosque Street, जो कि Mosque Street में थी. And a day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna, and he would earn a 1 anna of a day, which equals 6 पैसा. एक आना 6 पैसे के बराबर होता था. So my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war. और मेरे जो ब्रदर थे वो मुझे जलालुद्दीन मुझे स्टोरीज़ बताते थे अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दिनामनी. और जो मुझे ये हेडलाइंस के फॉर्म में मिलती थी मैं देखता था. सो ही जलालुद्दीन यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज ऑफ द ऑनगोइंग वर्ल्ड वार. वो बताया करते थे वर्ल्ड वार की स्टोरी, और बाद में APJ अब्दुल कलाम को वही स्टोरीज़ दिनामनी जो कि न्यूज़पेपर था उसे वहाँ पर देखने को मिलती थी. एंड यूज्ड टू लुक फॉर द सेम न्यूज़ ऑफ द सेम स्टोरी, और वो वैसी ही स्टोरी उनमें दोबारा से देखते थे. Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. So our area, जो हमारा एरिया था रामेश्वरम जहाँ पर वो लोग रहते थे, it was completely isolated. वहाँ कोई नहीं आता था, cut off था, being cut off from the world war and far from away land. So it was not affected by war. तो उस वहाँ पर वॉर का इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ा शुरुआत में. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन अलाइड फोर्सेस. लेकिन जल्दी ही इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा विद अलाइड फोर्सेस. अलाइड फोर्सेस थी जो आर्मीज थी UK की और USA की, एंड रशिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार. तो उन फोर्सेस को इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा था. समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और फिर वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. सो देन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर इन द कंट्री. सो ड्यूरिंग इमरजेंसी द प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्प्लीमेंटेड. जब इमरजेंसी लगती है कंट्री में तो प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्लीमेंटेड. ऐसे ही रूल्स इम्प्लीमेंटेड किए जाते हैं. सो इट इज़ जस्ट लाइक अ कर्फ्यू. ये कर्फ्यू की तरह है. सो इन द कंट्री सो अ लॉट ऑफ प्रिविलेज विच आर गिवन टू द पीपल आर विदड्रॉन. तो जितने भी प्रिविलेजेस लोगों को दिए जाते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं. तो इमरजेंसी उस टाइम लगी थी. And the first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. और पहला जो फर्स्ट कैजुअलिटी जो लॉस हुआ था वो ये था इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन को रोका गया था, ट्रेन स्टॉपेज एट द रामेश्वरम स्टेशन पर. सो द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड ऑन द पीपल ऑफ रामेश्वरम, जो वहाँ के लोग थे, वॉज द कैंसिलेशन वॉज द स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhansukhodi. जो पहली कैजुअलिटी थी इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन halt at रामेश्वरम, तो वो जो अर्लियर जो ट्रेन यहाँ आती थी इंडिया से यूज टू स्टॉप एट रामेश्वरम आती थी, एंड और उसके बाद वो धानसुखड़ी जाती थी. बट नाउ जो हाल्ट था वो कैंसिल हो गया था. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानसुखड़ी. तो अब वो जो स्टॉपेज था, जो हाल्ट था रामेश्वरम पे, वो कैंसिल हो गया था. और अब ट्रेन जो थी इंडिया से धानसुखड़ी जाती थी विदाउट स्टॉपिंग एट रामेश्वरम, बिना रुके रामेश्वरम में. विद दिस द न्यूज़पेपर बंडल which used to come for रामेश्वरम, जो रामेश्वरम आते थे, was thrown out from the moving train. वो चलती ट्रेन से फेंकते थे. and as it reached रामेश्वरम रोड, और वो रामेश्वरम रोड पर पहुंचते थे.
That forced my cousin Samasuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle. As if naturally I filled the slot. Samasuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. So APJ Abdul Kalam's cousin Samasuddin, who used to distribute newspaper in Rameshwaram, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, एंड अब उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है. ही नीडेड समवन टू हेल्प हिम टू कैच द बंडल, जो बंडल कैच कर सके. सो APJ Abdul Kalam started helping to Samasuddin and distributing the newspaper. And Samasuddin helped me earn my first wages. So in return, Samasuddin paid him. उसे वो पैसे दे दिया करते थे, a salary, and that was his first earning. और यही उनकी पहली earning थी. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. So even still I feel pride in myself, कि मुझे अभी भी गर्व होता है that कि I got my earning that time. Someone earn his own money with his hard work, कि मैंने अपनी hard work से वो money earn किया, and he feels it the same way as he did. So this incident happened earlier. Even still when he was writing the book, जब वो ये book लिख रहे थे, still he was feeling satisfied and he was feeling pride in himself. वो खुद में satisfied feel कर रहे हैं और बहुत pride feel कर रहे हैं कि वो मनी उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. And I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. I had 3 close friends in my childhood: Ramanathan Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. So every child is born with some inherited characteristics. Inherited characteristics mean जो qualities बच्चों को अपने पेरेंट्स से या ancestor से मिलती है. So into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain way by figures of authority. So for a child, the figure of authority क्या होता है? उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके टीचर्स हो सकते हैं. एंड फर्स्ट तो फिगर ऑफ अथॉरिटी जो उनके डिसीजन डिसाइड करें वो उनके पेरेंट्स होंगे, और नेक्स्ट फिगर कैन बी टीचर्स. सो अ पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स. APJ Abdul Kalam is saying that whenever a child is born, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उसमें जो कि उसे अपने पेरेंट्स से या एल्डर्स से मिलती हैं. सो दिस डिपेंड अपॉन द सोशल स्टेटस, ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एनवायरनमेंट स्टेटस से इम्पैक्ट पड़ता है. उस फैमिली के एनवायरनमेंट कैसा है, उसका घर का एनवायरनमेंट कैसा है. सो ही सेइंग दैट आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, कि मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला. एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और मेरी मदर से मुझे विश्वास मिला इन गुडनेस, सच्चाई के लिए. एंड डीप काइंडनेस और जेनरॉसिटी, काइंडनेस में जनरस होना. एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और उसी तरीके से जो मेरे 3 सिबलिंग्स हैं, जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आल्सो इनहेरिटेड, उनको भी यही क्वालिटीज़ मिली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स से. सो आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. एंड देयर नेम्स आर रामानंद शास्त्री हैं, एंड अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों उसके बेस्ट फ्रेंड थे. ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये तीनों फ्रेंड्स हिंदू ब्राह्मण स्ट्रिक्ट फैमिली से. ऑर्थोडॉक्स मतलब स्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ऑर्थोडॉक्स में स्ट्रिक्ट फैमिली से थे. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंट अमंगस्ट
ourselves because of our religious differences and upbringing. So as हम लोग kids से all of them belong to very strict Hindu Brahmin family. So APJ Abdul Kalam saying that APJ अब्दुल कलाम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड जो उनके फ्रेंड्स थे वो डिफरेंट रिलीजन से, वो हिंदू रिलीजन से थे, बट दे नेवर फेल्ट दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। लेकिन उन्हें कभी भी ये नहीं लगता था कि वो डिफरेंट रिलीजन से है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है। सो रिलीजन वॉज नॉट अ बैरियर, उनके लिए एक बैरियर नहीं था उनकी फ्रेंडशिप के लिए। एंड in fact Ramanand Shastri was a son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameshwaram temple। जो रामानंद शास्त्री थे वो सन थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो कि एक बड़े प्रीस्ट हैं रामेश्वरम टेम्पल के। इवन जब ये तीनों बड़े हुए तो जो रामानंद शास्त्री थे, जो सन थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने प्राइस्टहुड अपना वो प्राइस्टहुड करना स्टार्ट कर दिया। He took the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से लिया। और जो अरविंदन थे went into the business, वो बिजनेस में चले गए of transporting, arranging transport for visiting pilgrims। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन थे उन्होंने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट किया सदर्न रेलवे के लिए। सो ही वॉज इन चार्ज ऑफ द कैटरिंग फॉर द रेलवे, वो इंचार्ज बन गया। और जबकि अरविंदन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टिंग का पिलग्रिमेज के लिए, जो कि यात्रा के लिए जाते हैं हॉली प्लेसेस की, तो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने ये ट्रांसपोर्टिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family. So during the annual श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जो सीताराम कल्याण सेरेमनी थी यूज टू टेक प्लेस, वहाँ पर हुआ करती थी जब भी। सो जो APJ अब्दुल कलाम की जो फैमिली है दे यूज टू प्रोवाइड बोर्ड्स फॉर इट, तो वो उनको बोर्ड प्रोवाइड करते थे ताकि वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। दे यूज टू मेक ए स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन द बोर्ड्स ऑन एंड दे यूज टू मेक ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, वो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते थे फॉर कैरिंग आइडल्स, वो आइडल्स को राम और सीता की जो स्टैचू थे उनको ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाते थे, स्पेशल प्लेटफॉर्म बोट में, और वहाँ पर उनको रखते थे राम और सीता की स्टैचूज़ को, और उनको ट्रांसपोर्ट करते थे टेम्पल से उनकी टू द मैरिज साइट तक। एंड विच वॉज द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और मिडल ऑफ पॉन्ड में था, मतलब वो राम तीर्थ एक पॉन्ड के बीच में था। एंड द पॉन्ड वॉज नियर APJ's हाउस, और वो पॉन्ड उनके घर के ही पास था। इवेंट फ्रॉम द रामायण, जो इवेंट्स हैं, जो कहानियाँ हैं रामायण की, एंड इवन उनकी फैमिली सीताराम कल्याण सेरेमनी के लिए बोट्स प्रोवाइड कर रही है, और पूरे खुशी के साथ वो लोग हिंदू रीति रिवाजों को भी बहुत सम्मान दे रहे हैं। इवन APJ अब्दुल कलाम इज सेइंग दैट दे लिसन द स्टोरीज द इवेंट्स ऑफ रामायण, वो रामायण की इवेंट्स कहानियाँ सुनते थे, और लाइफ ऑफ प्रॉफिट जो फ्यूचर की बातें बताते हैं उनकी कहानियाँ सुनते थे, गॉडेस और गॉड की, बट द बेड टाइम स्टोरी, और ये सारी उनकी बेड टाइम स्टोरीज होती थी जो उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बताया करती थी, जो उनकी फैमिली के बच्चों को वो कहानियाँ बताया करते थे। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में अ न्यू टीचर कैम टू आवर क्लास, एक न्यू टीचर आया उनकी क्लास में। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, मैं एक कैप पहना करता था जिससे पता चलता है कि ये मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं रामानंद शास्त्री के पास में ही बैठा करता था। हु वॉर द सेक्रेट थ्रेड, जिसने एक हॉली, सेक्रेट मीन हॉली थ्रेड पहन रखा था, धागा गले में। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, तो जो
न्यू टीचर था वो यह नहीं कर पाया, कुडंट स्टमक, मतलब वो सहन नहीं कर पाया, कुडंट टॉलरेट, कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा बैठा हुआ है मुस्लिम लड़के के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ इट, जैसे ही हमारी उसने सोशल रैंकिंग देखी कि वो डिफरेंट रिलीजन से है और मैं डिफरेंट रिलीजन से हूँ, सो आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे कहा गया एंड सिट ऑन द बैंक बेंच, कि पीछे वाली बेंच पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक अटरली डाउन कॉज, वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। एंड आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और उसकी एकदम जो इमेज थी एकदम रोने जैसी हो गई। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो पर गया, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन इट। सो दिस इंसिडेंट क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और इस इंसिडेंट ने मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और हमारी फ्रेंड्स की फीलिंग को भी बहुत हर्ट किया। सो जो नया टीचर था, ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दिस दैट द हिंदू सन इज सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, सो ही आस्क्ड रामानंद शास्त्री, उसने रामानंद शास्त्री APJ अब्दुल कलाम को कहा टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बिकॉज ही बिलोंग टू अ लोअर रैंक ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो लोअर रैंक से बिलोंग करता है, मुस्लिम कम्युनिटी से। बट बोथ द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी सैड, वो दोनों को बुरा लगा। एंड APJ अब्दुल कलाम हैड टू चेंज हिज सीट, उसे चेंज करनी पड़ी सीट, एंड वेंट बैक, और पीछे गए एंड सैट ऑन द लास्ट बेंच। बट स्टिल ही रिमेंबर्स द इमेज ऑफ हिज फ्रेंड, उन्हें अपने फ्रेंड की इमेज याद है। स्टिल ही वॉज क्राइंग, रामानंद वॉज क्राइंग, एंड इट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। ऑन After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. He bluntly asked the teacher to go to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. After school के बाद we went home and told our respective parents. दोनों बच्चे अपने घर में गए, children went home and they told about this incident to their parents. उन्होंने इस इंसिडेंट को अपने पेरेंट्स को बताया। जो रामानंद शास्त्री के फादर थे लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, समन मीन कॉल द टीचर, उन्होंने एक टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंट, हमारी प्रेजेंट में ही कहा टीचर से, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि उन्हें पॉइजन मतलब जहर नहीं फैलाना चाहिए जो सोशल इनइक्वालिटी का है, कि ये पॉइजन वेनमस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट और रिलीजन का इन छोटे बच्चों के इनोसेंट बच्चों के दिमाग में नहीं फैलाएं। सो ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ये तो रामानंद शास्त्री के फादर जो लक्ष्मण शास्त्री हैं, उन्होंने टीचर को बुलाकर ये कहा कि आप इन छोटे बच्चों के दिमाग में आप सोशल इनइक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का पॉइजन न फैलाएं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और ये भेदभाव न सिखाया जाए स्कूल में। सो ही ब्लंटली आस्क्ड, उनसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा गया, ब्लंटली सीधे तौर पर, टीचर टू आइदर अपोलाइज, या तो अपोलॉजी करे, सॉरी मांगे और क्विट द स्कूल, या स्कूल छोड़ के चले जाए, एंड द आइलैंड, और ये आइलैंड। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने पछतावा किया उस बिहेवियर के लिए, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। सो उसे अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ और उसके थॉट्स भी चेंज हुए। नाउ हिज थॉट्स अबाउट रिलीजन एंड कास्ट, इट वाज अल्टीमेटली चेंज द यंग टीचर, उस यंग टीचर को भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ द लक्ष्मण शास्त्री डिटर्मिनेशन, जो लक्ष्मण शास्त्री का जो डिटर्मिनेशन था उनकी वजह से। टीचर ने सॉरी भी बोला, ही आस्क्ड सॉरी फॉर द मिस्टेक ही हैड डन, जो उन्होंने की, एंड हिज थॉट अबाउट रिलीजन एंड हिज कास्ट कम्प्लीटली चेंज, वो कम्प्लीटली चेंज हो गए।